Anila, we are live. वेलकम टू वरांडा। सभी फेसबुक के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ म्यूजिक वरांडा में। और मैं स्वागत कर रहा हूँ अनिला रामपुरिया जी की तरफ से और रेणु जी की तरफ से। और आज के हमारे गेस्ट रोहन सर को बहुत बहुत वेलकम कर रहा हूँ मैं उनका। और दिन ढल जाए हाय रात न जाए तू तो न आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए। दिल के मेरे पास हो कितने फिर भी हो कितनी दूर तुम मुझसे मैं दिल से परेशान दोनों है मजबूर। ऐसे में किसको कौन मनाए दिन ढल जाए हाय रात न जाए तू तो न आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए। थैंक यू सो मच। ओवर टू अनिला जी। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Madhu Mukesh ji. Or hello, namaskar, good evening. I'm Anila Rampuria, welcoming you all on behalf of Music Veranda. I'm a mentor to entrepreneurs and initiatives and founder mentor of Green Veranda, Music Veranda and Shopal. So Veranda जो हमेशा एक हाई एनर्जी गाने से स्टार्ट होता है, आज एक गंभीर और एक संजीदे गाने से शुरू हुआ है। मधु मुकेश जी ने बहुत सुंदर गाना गाया और मधु मुकेश जी थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूंगी। मुकेश जी के गानों को बहुत सुंदर निभाते हैं, इंदौर से हैं और जब भी मुकेश जी का कहीं भी प्रोग्राम होता है वर्ल्ड में तो इनको जरूर याद किया जाता है। सो दैट्स मधु मुकेश जी। लेकिन वेरांडा के लिए ये दूसरे गायकों का भी गाना गाते हैं, थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं। सो आप लोग सोच रहे होंगे दैट ऑन द प्री इवनिंग ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हम लोग ने ये संजीदा गाना क्यों चुना है। इसकी वजह है कि आज हम एक गहन चीज को समझना चाह रहे हैं। सो लाइफ का पर्पस और परस्यूट क्या है? टू बी हैप्पी एंड जस्ट to show to be happy is not our pursuit, and for that we have to be authentic and ourselves. And when we are into journey of being authentic, the chances are very high that we will get into conflicts with the people whom we matter, and it is very important that we resolve these differences on an ongoing basis and not take them to the explosion state. So this is the whole purpose of this evening. And guess what? Today, to elaborate on this subject, we have Rohan Singhal. Rohan Singhal, kya kahe? He's life coach and he's a mentor to leaders. He is an IIM, IIT alumni. He has worked for corporates, ICICI and Procter & Gamble, and he has an experience of 27 years. He has trained global leaders, and he is a renowned name in mentoring and leadership talks.
So thank you, Rohan sir, for being part of this evening. और personally, मैं रोहन sir को बहुत time से जानती हूँ. It's been 10 years or so. And he has handhold me into my personal transformation. So मैं रोज आपको gratitude करती हूँ every morning, you know, which is silent gratitude. But today I have the pleasure of sharing this gratitude on this platform. So thank you, Rohan sir, for being my mentor, for handholding me into the, you know, you have shared with me the power of intent, the power of universe, and so many things. So thank you, and over to you. Before that, थोड़ा सा म्यूजिक वेरांडा के बारे में. म्यूजिक वेरांडा एक इनिशिएटिव है जो हम लोगों ने क्वारंटाइन टाइम्स में लिया था टू टेक द पावर ऑफ म्यूजिक to many, and it has been like we'll be completing 1 year very soon. और हम लोग बहुत लोगों को हील किए हैं, बहुत लोगों को हैप्पीनेस दिए हैं अपने गानों से, गानों की बातों से, और बहुत सारी सोलफुल बातों से. So आज की शाम over to Rohan sir, and good news is, a good sharing is that he's a music lover too. तो आज हम रोहन सर से कुछ गाने भी सुनेंगे. Over to you. So first I would like to welcome you, और आप कुछ बताएं अपने बारे में. So thank you, Anila, for calling me on this session on my favorite topic and dare to be authentic. So मैं अपनी जर्नी ना, मेरी जर्नी अलग अलग स्टेज पे रही है. So एक you can actually say एक middle class. So सबसे पहला part of the life was major inferiority complex out of being in a middle class. Okay. Now, उस complex के पीछे inability, you know, fear of speaking in English, fear of speaking in public. Now उसको cover करने की सारे time बड़ी कोशिश रही. So how do you cover it? By inferiority complex को by chasing excellence. किसी ने सिखाया वो 3 idiot style में कि chase excellence. So chasing excellence and success के बहाने में ये IIT IIM घुस गया. और वहां पे भी मैंने ये रखा कि यार कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लेंगे, फर्स्ट आ जाएंगे तो शायद कुछ भाव मिल जाए और ये कॉम्प्लेक्स कवर हो जाए. तो नंबर और रैंक वैंक तो आ गया, ऑनर रोल में वो भी दिख गया, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स गायब नहीं हुआ. और फिर अराउंड 27 की उम्र में जब मैं इधर IMC से निकला, जॉब कर रहा था ICC में, वहां मुझे एक टीचर मिले जिन्होंने, एक्चुअली वो 75 साल के टीचर थे जिन्होंने लाइफ थोड़ी बदली. और उन्होंने ये शिफ्ट करा कि तुम ये ना डिग्री, ये जो कॉम्प्लेक्स को कवर करने के लिए जो इतनी सारी डिग्री के हार पहना रहे हो, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर आपने एक बड़ा सा बुर्का पहना, उसके ऊपर अब नए आप हार लगा रहे हो, उससे कुछ काम होगा नहीं. तो ये सारे हार निकालो, बुर्का साइड में रखो, एंड देन यू रियलाइज कि आपके अंदर जो है वो इतना बुरा है नहीं जिसको छुपाने की जरूरत है अलग अलग चीजों से. तो सो फिर वहां से अपनी जर्नी थोड़ी सी शिफ्ट हुई, और उन्होंने ये शिफ्ट करा कि जब तक ना तुम खुद को जीतने की कोशिश कर रहे हो, या मतलब हर चीज में फर्स्ट आने की कोशिश कर रहे हो, या और लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तब तक तुम्हें वो मजा नहीं आए. तो उन्होंने क्या सिखाया कि ना, यू शिफ्ट योर अटेंशन टू मेकिंग अदर विनर्स. तो आपको जो मिले आपके, जहां पे ये सोचो कि इसको विनर कैसे बनाओ इसकी लाइफ. जैसे आपका वहां ध्यान होगा तो आपका उससे गेम ही नहीं होगा, मतलब यू आर नॉट कॉम्पिटिंग विद दैट पर्सन, बिकॉज अदरवाइज वो IIT IIM में तो सब कॉम्पिटिशन और जेलसी से मैंने बहुत टाइम निकाला है. सो बेसिकली 27 साल तक ये चेजिंग एक्सीलेंस एंड सक्सेस. 27 के आगे ये समझे कि 47 अगले 15-20 साल वाज ट्राइंग हेल्पिंग पीपल, मेकिंग यू नो मेक देम विनर्स एज अ मेंटोर. एंड फिर मुझे एक और चीज समझ में आई 3-4 साल पहले, दैट ये करते करते यू ऑल्सो नीड टू बी लॉट मोर ऑथेंटिक. सो वन पार्ट ऑफ माई इंट्रोडक्शन इज दैट मेरे पास 40 साल का एक्सपीरियंस है ऑफ अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन लाइफ. सो उसके बाद लास्ट 3-4 साल में मैंने कुछ सीखा, दैट कॉन्फ्लिक्ट से भागने की जगह देयर इज अनदर वे. एंड सो वहां से ये फिर अपनी ये वाली बुक की जर्नी शुरू हुई. So this is a long and short of an introduction. Yes, yes. So now it is the apt time to share this, that Rohan Singhal is author of the book High Conflict by Conflict, so which is making waves today. So Rohan sir, my first question, since you have shared your journey so authentically, it really needs courage to share your journey like this. So अब मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपने बुक लिख दी कॉन्फ्लिक्ट्स पे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट इतनी बड़ी चीज है क्या, एंड हाउ डज इट अफेक्ट अस? सो दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन. इसका ना देखो, मैंने ये बुक मेनली तो इस वजह से लिखी कि ये कॉन्फ्लिक्ट की एक्सपीरियंस है ना, मेरे को बहुत अक्कल आई, और उस अक्कल आने के चक्कर में लाइफ
has become so different, and I'll share over this session on how in various relationships life has changed. And दूसरा क्या था कि ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा पहले अंदर चलता है, तो मेरे जिंदगी में तो यही कॉन्फ्लिक्ट रहता था कि ये चीज करें कि ना करें, बट सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये रहता था दैट आई वांटेड टू बी इन गुड बुक्स ऑफ एवरीवन, एंड उस चक्कर में आई वुड वांट टू प्लीज एवरीवन. नाउ प्लीजिंग में क्या होता है, यू विल बी नाइस टू एवरीवन. नाइस में होता है कि आपको जो कहना है फिर आप वो कहते नहीं, और जब आपको जो कहना था आपने कहा नहीं, तो सामने वाले को थोड़ी समझ में आ जाएगा कि आप क्या चाहते हो. सो सामने वाले अपनी अक्ल से निकल जाएगा, और देन यू विल एक्चुअली फील वेरी बैड. तो अ होल ऑफ माय लाइफ इफ आई लुक बैक, बचपन से मुझे ना ये अपने आप से बड़ी खुंदक रहती थी कि तूने वहां भी नहीं बोला और तू यहाँ भी नहीं बोला, और देख वो अपनी मर्जी करके चला गया. एंड आई यूज्ड टू बी जेलस ऑफ पीपल हु वर असर्टिव. दे कुड गेट अवे विद व्हाटएवर दे वांटेड, और मैं अपनी नाइसिटी में कि भाई मैं तो नाइसनेस सब लोग समझ के मुझे वो दे देंगे जो मुझे चाहिए मेरे बिना कहे. सो देन आई रियलाइज कि ना ये सब होता नहीं. और इसके पीछे पीछे दूसरे चैलेंजेस भी होते हैं, योर फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स बिकॉज यू डोंट वांट टू fail anyone else or yourself, or basically spoil your impression on anyone. So इसमें ना in a way you end up behaving like an imposter. So मुझे बड़ा समझ में आया कि यार सक्सेस आपने कर ली, आपके बड़े बड़े जगह नाम लग गए, लेकिन आपको अंदर से बड़ा खाली खाली हॉलो सा हो रहा है. फिर आपने औरों को विनर बनाना भी शुरू करा, तो उससे बहुत सारी चीजें चेंज हुई बिकॉज उससे जेलसी गायब हो गई. बट फिर भी कुछ चीजें रह गई कि साफ साफ हर एक को कहना. एंड सो बेसिकली मुझे समझ में आया कि कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा सेंट्रल इमोशन है जिसको बहुत लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़े गिफ्ट छुपे हैं. सो मैंने कॉन्फ्लिक्ट को जैसे कॉन्फ्लिक्ट को ना डरते डरते गिफ्ट को खोलना शुरू करा, तब मुझे समझ में आया कि भाई साहब ये तो अमेज़न की बड़ी वाली पैकिंग है, बबल रैप वाली, और उसको खोला तब अंदर से आपको वो एलिमेंट मिलेगा जो आपके लिए भेजा गया है. और मैं उसको अवॉइड करा था, दरवाजे से बंद करके भेज देता वापस, वो पैकेट कोई और ले जाता था. सो बेसिकली इसके लिए मुझे लगा कि एंड मैं धीरे धीरे आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या मेरी लाइफ में बदला, बट मुझे समझ में आया कि जितनी the kind of unconditional love I experience now in my life, especially with my relationship with my wife Ruchi, and the kind of freedom I experience dealing with anyone in this world, वो really priceless है. And I thought कि ये अकेले अपनी जिंदगी में खाली महसूस करना एक मजे की बात है, but if you can get many more people to experience this, तो वो एक अलग मजा है. तो इस चक्कर में हमने कहा कि चलो बुक लिख डालते हैं और देखते हैं क्या होता है. आपका अंदाज बहुत सुंदर है, यू नो, लाइक यू स्पीक नॉट लाइक अदर कोचेस, इट्स सो रिलेटेबल. और आप जो बोल रहे थे ना, मैं अपनी जर्नी से उसको इतना रिलेट कर पा रही थी, बिकॉज यू नो सेम काइंड ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड इन माय लाइफ, कि कुछ बोला नहीं, जस्ट बीइंग नाइस, यू नो, एंड सडनली यू स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं नहीं अब तो बोलना शुरू करते हैं. जब बोलना शुरू करते हैं तो बहुत टर्मोइल होता है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. सो वेरी वेरी रिलेटेबल. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज how do you relate it to a song, you know, matlab, since you're a music lover, I would actually want that you should relate it to a song, you know, and then give us some more examples about conflict, some situations. Yes, over to you. And hello, what I will request is Ruby ji ne ek bahut acha gana prepare kiya hai. First I will request her to sing that, and if you can also join, so can we request Ruby ji? Yeah, hello Ruby ji. Hello. So रूबी जी के बारे में भी कुछ बताती हूँ. ये दिल्ली से हैं. शी इज अ योगा टीचर, शी प्रैक्टिसेस मेडिटेशन, एंड शी इज अ हैप्पीनेस कोच आल्सो, यू नो. सो राइट पर्सन टू स्टार्ट सिंग दिस सॉन्ग. रूबी जी आप वो वाला गाना गाएंगे, रोहन जी के साथ जो है ना वो वाला. हाँ 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 हाँ. इस मोर से जाते हैं, इस मोर से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रसते,
कुछ तेज कदम राहे। पत्थर की हवेली को शीशे के घरोंदों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। Thank you very much for गोपी जी, for इसका रेलेवेंस क्या है? हाँ, तो इसका ना अब ना ये गाना हम जब ये बात कर रहे थे सेशन की, तो हमने कहा म्यूजिक वरांडा के लिए तो फिर म्यूजिक तो इसमें होना ही चाहिए और गाने कहीं से लाएं। तो अब आप जरा ध्यान देना, यही सारे जो वर्ड्स है ना इस गाने में, इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज कदम राहें। ये मोड़ पता कौन सा है? ये मोड़ अपनी जिंदगी का हर कॉन्फ्लिक्ट है, हर मोड़ पे, और वो तीन तरफ जाते हैं। तो किधर जाते हैं? पत्थर की हवेली को। पत्थर की हवेली को मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जिसको कोई तूफान कुछ नहीं हिला सकता, उस तरह की रिलेशनशिप, बिकॉज उसकी नींव गहरी है और उसकी दीवारें मजबूत है। सो पत्थर की हवेली को, पहला। दूसरा, शीशे के घरोंदों में। ना शीशे के घरोंदों मतलब कि अब रिश्ता ऐसा है ना कि कोई पत्थर बाहर से फेंक देगा तो टूट जाएगा। तो फिर आप कहे कि किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, किसी और तीसरे ने कह दिया, तो आपकी रिलेशनशिप में तूफान हो गया। सो वो उस तरह की रिलेशनशिप। तीसरा क्या था? तिनकों के नशे मन तक। अभी तिनकों के नशे मन तक तो जरा से भी आंधी आई वो पूरी झोपड़ी उड़ा के ले जाएगी। सो ब्यूटीफुल। तो उसी तरह के बेसिकली ये हमारे पास एक चॉइस है रिश्तों की, कि अगर आपने कभी कॉन्फ्लिक्ट में अगर वो उसको अच्छे से हैंडल करा ऑथेंटिकली, तो आप रिश्ता पत्थर की हवेली जैसा रिश्ता बना सकते हैं, और अवॉइड करा तो वो तिनकों जैसा या वो ग्लास वाला बनेगा। सो ये गुलजार जी ने किस भी तरह से कहा हो लेकिन हमने तो उठा लिया यहाँ से। और बेसिकली मेरे समझ में आया है कि मेरी लाइफ में बहुत सारे रिश्ते वो तिनकों के नशेमन और ये शीशे के घरोंदों जैसे थे, और अब मैंने सब के सब पत्थर की हवेली में ट्रांसफर करने शुरू कर। एंड ये मुझे फिर समझ में आया कि ये पॉसिबल है, हर क्षण पॉसिबल। और कॉन्फ्लिक्ट रोज आएगा। लॉकडाउन में तो कॉन्फ्लिक्ट वैसे ही बढ़ जाते हैं, घर का काम कौन करेगा, कितना करेगा, क्या बनाएं, और आज अभी फिर बिल्डिंग में लॉकडाउन वापस आने होने के चांसेस हो रहे हैं बिकॉज केसेस बढ़ रहे हैं कहीं पे। एंड सारे टाइम कॉन्फ्लिक्ट रहता है, किसी ने कुछ कहीं, मतलब, एंड आई थिंक मुझे समझ में कॉन्फ्लिक्ट बाय डिजाइन होगा ही होगा, बिकॉज क्लोन तो हमारे कोई मिलते ही नहीं। एंड दूसरा, अभी मैं देख रहा था एक नारियल पानी में पी रहा था, मैंने कहा एक भी नारियल कॉपी नहीं मिलेगी यूनिवर्स में। एक पत्थर उठा लो, उसकी कॉपी भी नहीं मिलेगी पूरे यूनिवर्स में। तो हम सब लोग बिल्कुल अलग अलग हैं और हमारे पर्सपेक्टिव अलग हैं, एंड हम सब एक दूसरे को एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू सिखाते हैं। सो ये अपना हमने सोचा चलो इसको गाने से जोड़ देते हैं। तो और बताइए। वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत म्यूजिक वरांडा वालों को सबको बहुत मजा आ रहा है बिकॉज यू हैव कनेक्टेड इट टू अ सॉन्ग, यू नो, एग्जांपल। सो कैन यू गिव अस सम रियल लाइफ सिचुएशंस दैट यू हैव डेल्ट विद, बिकॉज आप बहुत सारे आप सिचुएशंस को मेंटोर करते हैं, लोगों को मेंटोर करते हैं। सो इफ यू कैन गिव अस सम एग्जांपल्स आल्सो। मैं सोच रहा था, उससे पहले मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, कैसे होता है, वो बाद में करें या नहीं व्हाटएवर यू बेस्ट डिसाइड। तो मैं उसका ना थोड़ा सा पहले थ्योरी बता देता हूँ। मुझे जो समझ में आया कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाले टाइम टिपिकली ऐसे होता है कि दो लोग तो होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इन दो लोग में टिपिकली इक्वेशन ना इक्वल नहीं होती भाई। कहीं पे एक तो बॉस और जूनियर वाली इक्वेशन हो गई, कहीं पे हस्बैंड वाइफ वाले में ना इक्वेशन बदलती रहती है। कभी कभी वाइफ की इन पावर बड़ी होती है उस सिचुएशन में, कभी हस्बैंड की ज्यादा होती है। वैसे वाइफ की ज्यादा होती है मुझे लगता है मोस्टली एंड बट बेसिकली इस पूरी सिचुएशन में जब भी किसी ने कुछ गलती करी या किसी ने कुछ वो करा जो दूसरे वाले को नहीं चाहिए था,
सो मैं कहीं लेट पहुंचा, मैंने कुछ प्रॉमिस किया था वो नहीं करा, मैंने कोई काम उतनी ढंग से नहीं करा, तो जब भी मैंने एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करी दूसरी पार्टी की, वहीं कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अब लेकिन उसमें क्या होता है कि एक पार्टी तो मैड वाली साइड जाती है क्योंकि दैट पर्सन कैन एक्सप्लोड, उसके पास थोड़ी पावर ज्यादा है, उसके मन में लगता है कि उसके पास पावर ज्यादा है, तो वो चिल्ला विल्ला के अपनी कहानी कर लेता है या कर लेती है। और दूसरी वाली पार्टी सैड पार्टी होती है, तो आई कॉल इट आई मैड पार्टी और आई सैड पार्टी। और आई सैड वाले को क्या होता है, गुस्सा बहुत आता है, लेकिन उसको लगता है कि अब यहाँ उबले तो फिर मुश्किल हो जाएगी, बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं आई सैड वाली पार्टी था मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैं कई बार कुछ बोलता नहीं था, फिर एक साथ ज्वालामुखी जैसे निकलता था, तो उससे और बड़े नुकसान हो जाते, क्योंकि जिस पे निकला उसकी इतनी गलती नहीं होती थी, लेकिन फिर आपके शब्दों में ना एसिड भर के आता है, क्योंकि आपने बड़े दिनों से बोला नहीं वो चीज, और कई लोगों का मिलके इधर आ जाता है बारूद बन के। सो पहला तो मुझे एक समझ में आया कि ये कॉन्फ्लिक्ट में जो मैड या सैड वाला चीज होती है, वो दोनों दोनों की साइंस है पीछे की। अपने ना एक ब्रेन है एमिगडाला करके, विच इज कॉल्ड अ रेप्टिलियन ब्रेन, विच इज आर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वाला ब्रेन, कि जब भी हमारी कोई मुश्किल सिचुएशन हो, जहां पे भी एक्चुअली डेथ वाला फियर हो, वहां पे उस समय ना आपका ये जो अपने फ्रंट में एक नियो कॉर्टेक्स ब्रेन होता है, जो फ्यूचर की सोचता है और अपने प्लान्स बनाता है, लेकिन एमिगडाला वाले ब्रेन को हमेशा ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, बिकॉज हम लोग जिंदा उसकी वजह से कि अभी टाइगर दिखा तो भागना है पुराने टाइम, और कहीं से गायब होना है, या फिर झगड़ा करना है वापस। तो सो एमिगडाला को क्या होता है कि अब हमको डेथ के फियर इतने नहीं होते, अब नाउ वी स्टे इन अ सेफर सोसाइटी, बट डेथ के फियर दूसरे टाइप के होते हैं। एक तो फियर ऑफ एम्बेरसमेंट इन पब्लिक, फियर ऑफ रिजेक्शन, और फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड। तो ये अलग अलग टाइम का फियर ऑफ फेलियर्स, तो हम अब ना उन सबको डेथ का इक्विवेलेंट मानते हैं। और जब भी ऐसा कहीं कोई चीज आई, फट से एमिगडाला टेक्स ओवर, और उसको बोलते हैं हम एमिगडाला हाईजैक। जो प्लेन का हाईजैक होता है ना, वैसे एमिगडाला हाईजैक है, कि नाउ एमिगडाला विल हाईजैक द नियोकॉर्टेक्स ब्रेन, एंड जो एमिगडाला बोलेगा वही होगा। सो उस टाइम फिर आपने खूब चिल्ला दिया सामने वाले को, आपने कुछ नहीं सोचा, बाद में आपको जो बुरा लगा वो अलग चीज है। सो द होल आइडिया इज व्हेन अ कॉन्फ्लिक्ट इज स्टक, उसमें दोनों पार्टी को एमिगडाला हाईजैक हो गया। उसने फाइट वाला हिसाब किया तो वो आई मैड में चला गया, इसने फ्लाइट वाला हिसाब किया दूसरे वाले ने तो वो आई सैड में चला गया, और फिर ये कॉन्फ्लिक्ट अपना खड़ा हो गया अपनी जगह। और अगर उसको आपने हैंडल नहीं करा तो फिर वो बड़ा होता जाएगा। सो बेसिकली ये तो एक बेसिक थीम है कॉन्फ्लिक्ट की। एंड मैं आपको, और इसको हैंडल करने के लिए बेसिकली एम्पैथी, ऑथेंटिसिटी और रिस्पेक्ट, वो वाला एक हमने मॉड्यूल बनाया था। एंड सो बेसिकली अब मैं उसके आप सोच रहा हूँ कि आपको कौन से तरह के एग्जाम्पल दूं। मैं आपको एक डायरेक्ट, एक तो सबसे पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, जो जिसकी वजह से बुक आई एक तरह से, कि तो मैं ना पहले पहले तो ये था कि सारी लाइफ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करा। पिछले 4 साल पहले मैंने देखा यार कि इतने सारों को लीडरशिप आपने सिखाई है, और कोलैबोरेशन सिखा रखा है, तो तुम ये सीकिंग अप्रूवल से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? दिस होल नीड फॉर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम एवरीवन, नीड टू बी ओवर नाइस टू पीपल, एंड नीड टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो मैंने कहा ना, आपसे कॉन्फ्लिक्ट को आने दो सामने से। सो कहने से नहीं होता, फिर आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी। कोई एक फीलिंग गुड टुगेदर करके एक बुक थी डॉक्टर डेविड बर्न की, और एक जॉर्ज कोलराइजर की हॉस्टेज एट द टेबल। वो 2 किताबों से मुझे बड़ा फर्क पड़ा। और उन्होंने क्या सिखाया कि ना, किसी भी चीज में व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, इंक्रीज बॉन्डिंग एंड बी ऑथेंटिक। तो इनका भी ठीक है। तो और उसमें बड़े सारे एग्जांपल्स थे। तो तो मेरा क्या है ना, मेरी ये लव मैरिज है। तो 2011 में वी गॉट मैरिड, एंड वी रियली अंडरस्टैंड ईच अदर वेल। तो मेरी वाइफ का नाम रुचि है। और तो मैं सोचता था कि अपनी तो ना 9 on 10 टाइप की रिलेशनशिप चल रही है, मतलब ऑन ऑन व्हाट कैन बी। एंड सो एक वन नाइट मैं दिल्ली से बॉम्बे आ रहा था एक वर्कशॉप करके, तो मुझे एक मैसेज आया रुचि का, और उसमें दिख रहा था कि बहुत गुस्सा है, और एक लाइन में पता चल जाता है। और मैंने कहा, बोर्ड हो रही फ्लाइट, तो अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है, तो घर जाके बात करें। और जब घर पहुंचा ना, तो ऐसा घर में सन्नाटा, मतलब वैसे हम 2 ही लोग रहते हैं, बट वो सन्नाटा ना पता चल जाता है वाइब्रेशन।
I'm sure all of you who are watching this will know what this means. You know, उस दिन की कुछ तो गड़बड़ है अभी. And एकदम, and then she said कि मैं तो ना घर छोड़ के जाने वाली थी, and I would have left you and this relationship and not you know reply to your calls. और मैं ना एकदम आसमान से ऐसे गिरा, खजूर में भी नहीं अटका, डायरेक्ट गिरा. और फिर I thought यार अपना तो 9 on 10 में अपना नेगेटिव मार्किंग किधर से आ गई. तो सो फिर तो उस टाइम मेरी नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है ना कि अभी चुप हो जाओ बिल्कुल, और कुछ भी और बोल के ना आग में घी नहीं डालना. सो नॉर्मली ऐसे होता है ना, जब दूसरा वाला नाराज होता है तो, और दूसरा एग्रेसिव वाला है, तो रुचि इज द असर्टिव एग्रेसिव पर्सन इन आवर इक्वेशन. तो सो मैंने तब तक मैंने सीख लिया था कि इन सच केसेस बी ऑथेंटिक एंड इंक्रीज बॉन्डिंग. तो मैंने कहा अच्छा यहाँ से भागते नहीं है. एंड आई जस्ट लुक बैक इन माई हेड कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. मतलब सामने उसको समझाना, करेक्ट करना या माफी मांगने की जगह ना मेरे को समझ में आया कि ऑथेंटिकली शेयर करो क्या चल रहा है. तो फाइनली मेरे को ये समझ में आया, तो मैंने उसको बोला कि ना आई डोंट नो किस बात पे तुम इतनी नाराज हो गई है, पर इस समय आई एम फीलिंग वेरी स्केयर्ड ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, you know. And she started crying because she also said that I am also very afraid कि मैं चली गई तो मैं भी अकेली रह जाऊंगी. And then she said that I thought भाई तुम तो इतने पॉजिटिव हो, हर चीज को संभाल लेते हो, तो तुमको फर्क ही नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने. So I then clarified that I've been trained to handle anything in life, but I will choose to be with you. That is my choice, and I have stayed alone, so I know what that life is, and I'll any day choose my life with you. And फिर हमने उस पे फिर और बातें करनी शुरू करी कि जो उसने नहीं शेयर करी थी नॉर्मली लाइफ में, कि मैं इसको बुरा लग जाएगा. सो वी एक्चुअली कॉल दैट इज व्हाट इज एलिफेंट इन द रूम, कि भाई वो अनडिस्कसेबल है लेकिन दोनों को खा रहा है. सो एक एक करके हमने वो सारी चीजें डिस्कस करनी शुरू करी. और तो अब ये कह सकते हैं ना कि अब हमारे घर में ना बहुत जगह, क्योंकि अब घर में ना एलिफेंट्स नहीं है. तो आप कई बार किसी भी घर में जाओगे ना, आपको फट से पता चल जाएगा कि ना वहां पे क्या हो रहा है. मतलब इज देयर यू नो दोनों जो भी लोग हैं, नॉट जस्ट हस्बैंड वाइफ, बट घर में ना सब वाइब्रेशन पता चलते हैं कि ये वहां मत बताना, ये उसको मत बोलना, और ये उसका बुरा मान जाएगा, यहाँ पे एक्सेल पे चलना पड़ेगा. सो हमारे घर में वो नहीं है. एंड ये नहीं है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गए, मेरे ख्याल से कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हो गए, बट उनकी क्वालिटी चेंज हो गई. प्लस वो जो हम एक दूसरे से कोल्ड वॉर चलाने में 2-3 दिन लगते थे, अभी 10-15 मिनट में निकल जाते. एंड आई कुड से लॉट ऑफ थिंग्स टू हर. जैसे एक चीज में भाई लेडीज को क्या है, गलतियां जल्दी दिख जाती हैं बिकॉज उनकी आई टू डिटेल ज्यादा होती है. सो वो ये चीज वहां छोड़ दी, वो चीज ऐसे क्यों करी. और लॉकडाउन में तो अपने और भी होते हैं कि भाई ये बर्तन में सब्जी छूट गई, वो वाली कहानी भी होती है. सो सो देन आई एक्चुअली टोल्ड हर कि एवरी टाइम यू पॉइंट दिस मिस्टेक टू मी, मुझे बहुत बुरा लगता है. और एक तो बुरा इसलिए लगता है कि वो जो पॉइंट करा वो सही किया था, कि भाई वो मेरे से गलती हो गई. दूसरा ये लगता है कि तूने इस तरह से पॉइंट करी है जैसे ना मैं तो एक गंवार हूं और तू बड़ी इंग्लिश मीडियम की कॉन्वेंट एजुकेटेड. एंड दैट्स व्हाट शी इज एनीवे. मैं बड़ा हिंदी मीडियम स्कूल में था शुरू में. सो देन शी सेड कि बट मैं तो ना दिस इज द ओनली वे आई नो हाउ टू यू नो पॉइंट मिस्टेक्स, क्योंकि बचपन से यही दिखाया था मुंह पे डायरेक्ट बता देने का. सो एक मिनट, ये स्क्रीन कहाँ चला गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड. हाँ, सो डायरेक्ट बता देने का ये वाला. सो मैंने कहा नहीं, बट लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है. तो शी सेड बट व्हाई वुड आई वांट टू रन डाउन समवन हु आई लव. सो देन शी एक्चुअली गॉट अ कोट. तो ये रूमी की एक कोट है जो बड़ी काम की है. मतलब उसको इंग्लिश में ये कोट थी, हमने कहीं देखी थी. रेज योर वर्ड्स एंड नॉट योर वॉइस, because it's the rain that gets the flowers and not the thunder. So she actually said that, I promise that from now on I will not change the tone, not change the tone, keep an even tone while pointing any mistake. तो अब क्या होता है कि मिस्टेक होती है, वो इवन टोन में बता देती है, मैं उसको ठीक करके अपना निकल जाता हूँ, एलिफेंट बनता ही नहीं है. So this is one example. Maybe over time we can give you some more examples. So
और कोई आपका सवाल पूछें वापस. Oh, wonderful, wonderful, and so relatable. And I'm just wondering, it takes courage to share your own journey, your own situations, but it helps so much. You know, you can immediately connect. So thank you so much. And now आप सबको पता चल गया होगा कि मैं रोहन सर का हमेशा नाम क्यों लेती हूँ, क्योंकि whenever I sit with him, I get to learn so much from him. So I would just like to understand, जैसे बच्चों के साथ आजकल बड़े ही टर्मोइल्स होते हैं, हम लोगों के बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हो जाती हैं, and especially young children. I have a young daughter, so I do not have the courage to disclose the actual conflicts, but yes, there are conflicts. So थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें, इसको कैसे डील करें और मेरे क्यों को होते ना, हैं? हाँ, मैं एक तो हमने जो जैसे जो बुक लिखी ना ये वाली, तो उसमें एक मॉडल है जिसका एक ब्रीफ मैं आपको समझाता हूँ, और मैंने नोट किया है कि वो सब सिचुएशन में चलता है. तो उसका बेसिकली उसका फॉर्मेट ये है कि EAR कान वाला, बट E फॉर एम्पैथी, A फॉर ऑथेंटिसिटी एंड R फॉर रेस्पेक्ट. एंड सो किसी भी केस में एम्पैथी का मतलब, पहली बात तो रेस्पेक्ट होनी इसलिए जरूरी है कि अगर रेस्पेक्ट है ही नहीं उस रिश्ते में, वो रिश्ता इंपॉर्टेंट ही नहीं है ना, मुझे उस पर्सन का कुछ भी अच्छा लगता जेन्युइनली, तो उस रिश्ते में मुझे वो रिश्ता बना के नहीं रखना. बट इफ लेट्स से इट इज योर से अ टीनेज डॉटर, तो नाउ व्हाई द रिलेशनशिप मैटर्स. So first part is realizing why the relationship matters. So why the relationship matters is because she is my daughter and sometime my only daughter, and I want best for her. And I, मेरे को उसके साथ उसको जिंदगी में बहुत ऊंचा जाना, खुश देखना है. I want her to be independent, etc. So but and then what do I admire her for? So respect वाला portion is, हमेशा जिससे भी कॉन्फ्लिक्ट है आपको ये वाला चीज बाहर पहले निकालनी पड़ेगी कि why does the relationship matter and what do I admire in. So what do you admire in her, आपको ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा इसकी मैंने गलतियां बड़ी निकाली हैं, लेकिन इसकी ये चीज बड़ी अच्छी है, इसकी आई टू डिटेल अच्छी है, या फिर ये बड़ी पैशनेट है इस चीज के लिए, ये इनफैक्ट ये बड़ी ऑथेंटिक है, बड़ी असर्टिव है, ये प्लीजिंग के चक्कर में नहीं रहती, अपना काम अच्छे से करती है, तो जो भी है. सो आपने ये रेस्पेक्ट वाला पार्ट उठाया. फिर एम्पैथी. तो रेस्पेक्ट के पिलर पे आप ये सोचो, अगर दो लोगों के बीच में गैप है, बीच में खाई और नदी चल रही है कंफ्यूजन की, अब उसको अपने को ब्रिज करना है, तो पहले हम रेस्पेक्ट के पिलर बना रहे हैं. तो रेस्पेक्ट के पिलर के ऊपर पहले तो मन में रेस्पेक्ट चाहिए, फिर अपन वो शेयर करेंगे बाकी डायलॉग से, बट पहले अपन तैयारी कर रहे हैं मन में. तो रेस्पेक्ट का पिलर बनाएंगे, फिर उस पे एम्पैथी की रोड बनाएंगे. नाउ एम्पैथी का मतलब सिंपल, आपने सुना होगा कि गेट इनटू अदर पीपल शूज, लेकिन हम करते नहीं. सो मतलब जिसको बोलते हैं एम्पैथी, किसी के भी शूज, गेट इनटू अदर शूज से पहले आपको एक और काम करना पड़ेगा. वो क्या काम होगा बताओ? बेसिकली अगर आप सोचें तो सिंपली यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर ओन शूज, जो हम नहीं करते. तो हम नाउ यू इमेजिन, बिना अपने जूते निकाले आपको दूसरे वाले शूज में आप घुस ही नहीं सकते. मेरा 9 नंबर का जूता है तो 15 नंबर का लगेगा. सो फिर बेसिकली कुछ होगा नहीं. एंड सो इट इज देन अ होल लॉट ऑफ a struggle. So first empathy is getting into the other person's shoes. So in case of a teenager daughter or a son, और जो सपोज 17-18 साल की है, तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि what is she going through, what does she really want. So she might be going through, अच्छा मेरे मम्मी पापा इतने सक्सेसफुल हैं और मैंने तो क्या बोलते हैं, सॉरी मेरा स्क्रीन कहीं चला गया, एक मिनट, सॉरी मैं बीच बीच में ना ये स्पॉटलाइटिंग चेंज हो रही है. सो ऐड टू स्पॉटलाइट करना होगा आपको. ऐड स्पॉटलाइट करेंगे तो हम दोनों लोग दिखेंगे. और अब सो बेसिकली एम्पैथी वाली साइड कि वो व्हाट इज गोइंग ऑन इन हर हेड, व्हाट डज शी वांट, व्हाट इज शी फीलिंग एंड व्हाट इज शी सेइंग. अपने को तीनों चीज लानी पड़ेंगी. तो सपोज उसने कुछ कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी ना, ये तो सिर्फ इतना सही, व्हाट इज शी सेइंग, but what is she feeling. So right now she's maybe feeling patronized, right now she's feeling being corrected all the time, nagged all the time, or she's feeling really frustrated कि ना अभी 1-2 साल रह गए, फिर यहाँ से बाहर जाना है,
and इतनी सारी my parents have so much expectations from me, and how do I take care of all of that? And उसके साथ साथ और कहानी है, इस एज में पता नहीं और कौन सी relationships का कहानी चल रही हो. So she might have a delicate relationship with someone, with another girl, another guy. So वो सारी चीजें, so what is she going through? And आपको guess करना पड़ेगा पहले कि I think उसके goal, concerns, fear ये हैं. So empathy का simple मतलब है listing goal, concern, fear of the other person, and then seeing कि what that person really wants from you, what the person really felt in the last interaction, and ये सब लिख के then saying it to her and asking her, am I right? Have I read it rightly, or have I missed something? तो फिर सामने वाला आपको कुछ कुछ और बता देगा कि नहीं. और इसके पीछे पीछे एम्पैथी में एक बड़ा सा ग्रेन ऑफ ट्रूथ, विच मीन्स कि वो ताली दो हाथ से बजती, एक हाथ से नहीं बजती. दैट मीन्स जब भी आपका कोई झगड़ा हुआ है तो आपने कुछ ना कुछ तो मसाला डाला ही उसमें. सो चाहे वो 1% ही हो. So finding the grain of truth is where did I mess up, and sharing that upfront rather than wanting to, नहीं तू अपना grain of truth पहले बता के accept कर, वो रहने दो. तो empathy में वो नहीं आता. There is no sarcasm in empathy. So that is empathy. So EAR का हमने E और R cover किया. Now comes the main part, is authenticity. कि now so authentically what do I share with my daughter or son, let's say. So now authentically, one is my normal tendency is कि अब ये नहीं करती, वो ये भी नहीं करती और ये भी नहीं करती, इसकी इस चीज से मैं परेशान हूं, और अगर ये 5 चीजें ठीक कर दे तो मेरी चल पड़ी. और ये 5 चीजें मैं इसलिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसका भी फायदा है, मैं तो इसकी माँ हूं. सो आई नो दैट इट्स गुड फॉर हर. बट ये सारा इज ऑल करेक्टिंग विदाउट कनेक्टिंग. सो आपको पहले कनेक्शन चाहिए, फिर करेक्शन चाहिए. बिना कनेक्शन के सामने वाला सुनेगा ही नहीं. अभी आपने ब्रिज बनाया नहीं एम्पैथी का, रेस्पेक्ट वाला बनाया नहीं, अपनी कार भेज दी, वो गिरेगी डायरेक्ट खाड़ी में. सो अब ऑथेंटिसिटी में, rather than correcting your son or daughter, my recommendation is authenticity is truly sharing what am I feeling. So basically, as a mom, sometimes sharing what have you have gone through. Sometimes your kid will say, मुझे सुनना ही नहीं आपकी, आप रोज यही कहानी सुनाते हो, हमारे जमाने में होता था. So then you come to that, what I wish for you. My wish for you is that I want you to be a self-dependent, financially independent woman, and someone who can live her life in my absence. अगर मैं एक दिन गायब हो जाऊं तो ये इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली सब सहले. And I want you to be on that road much earlier than whatever you think. और तुम्हारे जो आप ये सब कर रहे हो उसमें मुझे लगता है ना, ये वहां नहीं जा रहे. फिर मुझे ये भी लगता है कि तुम्हारी हेल्थ इतनी अच्छी से रहे ताकि तुमको कोई दिक्कत नहीं रहे. आजकल तो 40-45 की उम्र में लोगों ने लाइफस्टाइल इलनेस पाल रखी है. तो अभी क्या है, वाइटैलिटी अच्छी है तो आपको पता नहीं चल रहा. तो मैंने कई लोगों को देखा है. तो मैं चाह रही हूँ कि मैं सारी जिंदगी तुमको एकदम ब्लॉसम ग्लो वाला देखूं. और मैं कह नहीं पा रही हूँ, और हो सकता है एंड अप नैगिंग यू, बट दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम. एंड ऑल्सो आई वांट सम पार्टनरशिप. कि अभी लॉकडाउन हो गया तो एक तरफ से मुझे लगता है कि सारा काम मैं ही करूँ तो मेरे को नौकरानी वाला फील हो रहा है. उसके भी मुझे पैसे नहीं मिल रहे. वही नौकरानी को तो फिर भी पैसे मिल रहे होते थे. सो आप कुछ हेल्प नहीं कर रहे, और फिर आप हर चीज में अपनी और या फिर आप कुछ और चीज छोड़ के चले जाते हो. तो मुझे इन सब से ना, मुझे लगता है कि मैंने ये सब क्यों, मतलब सारी पढ़ाई ये सब कराई क्यों. सो लेकिन इस पूरे में कहीं पे भी आपको क्रिब ब्लेम और कंप्लेन नहीं करना. वहां आते ही आपकी ऑथेंटिसिटी गई पानी में, एम्पैथी चली गई. तो कहीं सार्काज्म लाया तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा. सो दिस इज हाउ आई फील, what I am worried about, what I care for. ये सारी चीजें लाके what I really want from you is this, that you really share what is going on in your life. I actually wanted to be your friend, a trusted friend, but I think I have lost that maybe that role, or I probably never created that role and I only stayed a mom. So वहां से, in fact we had a I had in one of the workshops we had one lady who said मेरी 19 साल की डॉटर है और ये ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी कुछ महीने बाद.
और ये नहीं सोता, वो नहीं होता, वो सुनती नहीं। एंड हमने उसको ये पूरा फॉर्मेट भरवाया कितना, तो वो पहले लिख पूरा, बिकॉज एंड जरूरत हो तो वो कहो जाके शेयर कर लेना उससे। देन लेटर शी सेड नहीं, वो कहती मुझे आपकी कुछ भी बात नहीं सुननी, आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू यू। एंड आई थिंक एंड देन जब हम इस पे बात कर रहे थे ना कि व्हाई डज द रिलेशनशिप मैटर, तो मैंने उसको बोला देखिए 3 महीने बाद चली जाएगी ना, फिर तेरे को कभी नहीं मिलेगी, बिकॉज फिर जाएगी वहां से कहीं शादी हो जाएगी, फिर तुम्हारे घर पे आके ये 6-7 महीने जो अभी रहने वाली है, 3-4 महीने, वो फिर नहीं रहेगी। सो दिस इज योर लास्ट चांस टू रियली सोक इन विद ईच अदर, विद मॉम डॉटर। तो उसको ये बड़ा समझ में आया कि अच्छा यार ये 3-4 महीने ही है अभी, बिकॉज बाकी सब रियलिटी है। एंड देन फाइनली एंड शी, उसने सारी मेहनत से सारा EAR भर लिया। एंड फिर हमने कहा क्या करें, तो बात ही नहीं करी। देन वी सेड अच्छा तू एक लेटर लिख, राइट एन ईमेल एंड सेंड इट टू हर। उसको जब कभी ना कभी तो देखेगी। एंड यू नो नाउ if you ask her, she says my daughter tells me that you are my rock. You know, that is the shift I have seen happening in people's life. And तो ये है। आगे सवाल पूछे। थैंक यू सो मच। एंड इनफैक्ट मैंने आपसे इस बारे में बहुत पहले बात की थी, एंड यू हैड टोल्ड मी दिस, सो आई हैड एक्चुअली प्रैक्टिस्ड इट, एंड सो लॉकडाउन वाज एक्चुअली नॉट दैट बैड, इट वाज लाइक वंडरफुल, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिस किया था। सो आई वुड रिकमेंड एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स, टू एक्चुअली डू दिस। इट हेल्प्स, इट वर्क्स वंडर्स। सो थैंक यू। और आई वुड लाइक टू आस्क यू कि हेल्थ पे क्या इफेक्ट करता है कॉन्फ्लिक्ट, यदि हम रिजॉल्व नहीं करते हैं, तो हाउ डज इट अफेक्ट आवर हेल्थ? Yeah, I'll tell you, it affects a lot of place. पहली बात तो ये आप समझें कि ना, we are, all of us have a ball of light in us. We are, बोलते हैं ना हम एक लाइट का पुंज है, प्रकाश का पुंज है, तो all of us have this ball of light. Now that ball of light is what we are gifted with. छोटे बच्चे की ball of light बहुत बड़ी होती, बिकॉज उसके ना कुछ भी कटिंग नहीं कर रखी होती किसी ने, कोई रिजेक्शन, कोई फियर, वो सब डाला नहीं होता। तो वो दैट पर्सन, यू नो, छोटा बच्चा कहीं का भी किसी भी इथनिसिटी का होगा, वो बच्चे को देख के आपको बड़ा प्यार आ जाएगा। सो एक मिनट, फिर से स्क्रीन चला गया। सो एक मिनट अनिला, मैं ना इसकी सेटिंग बार बार हिला देता हूँ। हाँ, स्पॉटलाइट कर देता हूँ, ऐड स्पॉटलाइट। हाँ, सो ये जो प्रकाश का पुंज या लाइट हमारे अंदर होता है, इसके अंदर कई चीजों से या तो होल हो सकता है, वो लाइट बढ़ सकती है। तो लाइट कब बढ़ती है? when you do something which you love, when you do something which feels very meaningful, purposeful for you, when you were truly yourself and authentic, तब ये लाइट बढ़ती है। और ये लाइट में होल कब होता है? any time you thought something and you said something else. तो अगर आपने वो चीज बोली नहीं, चाहे वो पर्सनल रिश्ता था, चाहे इन लॉज के साथ था, और हम ये भी नहीं कह रहे कि आप जाके अपनी ऑथेंटिसिटी उनके सिर पे मार के आ जाओ, बिकॉज वो भी नहीं होगा फिर। सो एनी टाइम यू डू एनीथिंग विच इज इनऑथेंटिक इन योर हेड, आपने वो चीज नहीं बोली जो आप कहना चाहते थे, किसी भी वजह से, आप अपना खून का घूंट पी के रह गए, आपने जो भी किया, अगर आपने नहीं बोली, तो इट विल पंच अ होल इन योर वेसल ऑफ लाइट and it will start depleting it. Now, some days, I just want everyone who's on this session, some days this light is so big, अपन तो कुछ भी, anything you touch will turn into magic. जिससे बात करी हर कोई बोलेगा इतना ग्लो आ रहा है चेहरे पे, चाहे, and everything you touch gets done very well. And some days you feel so low कि जैसे कि ना इस समय किसी क्लाइंट को कॉल भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि कॉल कर ली ना तो कॉल खराब हो जाएगी। So you just know that. So the first thing is that anything you do inauthentic will deplete your light, and this light is what sustains everything else, all the health and systems of ours. And so therefore authenticity is extremely critical. तो जब भी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ और मैंने उसको हैंडल नहीं करा इज्जत से, सो अब मैंने उस लाइट में एक होल कर दिया, एंड फिर वो धीरे धीरे निकल जाएगी लाइट। एंड लाइट खत्म हो गई तो हम ये संसार से निकल जाएंगे। तो लाइट खत्म होनी इतनी आसान नहीं होती, बिकॉज अपना भी एक रिटर्न टिकट है, उससे पहले नहीं निकलेंगे। बट बेसिकली, सो हाउ इट विल इम्पैक्ट द हेल्थ, फर्स्ट इज, देन यू विल रन
a negative cycle in your head कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, everyone takes me for a ride, why can't I have guts to say things, why can't have, मतलब मेरे से फेस क्यों नहीं होता, मेरे को क्या डर लग रहा है, मेरे को ये वाला रिश्ता जम भी नहीं रहा, मेरे से अलग भी नहीं हुआ जा रहा. So when you run all of this, then this anxiety piece actually then leads to a lot of other hormonal secretion. So ये बोलते हैं कि all stress or adrenaline both in excess lead to a lot of acid. Adrenaline तो खुद ही acid होता ही है, and lot of that acid is actually which reduces your immunity. तो वो एक separate chapter है कभी, but bottom line ये है, if you have an net, our system is supposed to be alkaline. So if your system remains alkaline, no dengue corona will touch you, because एक पत्थर, एक seed को soil चाहिए grow होने के लिए, that soil is an acid soil. So any illness only comes after you have increased acid in your system. So घूम फिर के वापस conflict, unhandled conflict will lead to depleting your core light source which runs your life, and then you will have an internal dialogue which will magnetize negativity around. And yeah, so this is the long and short answer. अगला सवाल पूछें. Wonderful. Yeah, we have a lot of other participants. So यदि आप लोगों को कुछ questions हैं, so feel free to ask those questions. We'll have a question answer session in maybe in 5-10 minutes. So मेरा next question है कि how to resolve conflicts and a little about the book and your other workshops. हाँ, so resolve conflict का पहला तो वो EAR जो मैं बोल रहा हूँ, एंड इसको हमने बड़ा डिटेल में मैंने क्या किया भाई, अपने को एक वर्कशीट बनाने की बड़ी आदत है, तो स्टेप बाय स्टेप वर्कशीट फिल इन द ब्लैंक्स वाली. आई फील हर्ट दैट डैश, आई थिंक योर गोल्स आर, आई थिंक योर फियर इज, ऐसे करके ना मैंने बड़े सारे फिल इन द ब्लैंक्स डैश वो बना रखे हैं. और सो उस पूरे को आप जब पढ़ोगे और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को लेके भरो, सो यू विल एक्चुअली फाइंड अ सोल्यूशन. इन समरी घूम फिर के उसमें एम्पैथी, ग्रेन ऑफ ट्रूथ, ऑथेंटिसिटी और रेस्पेक्ट का कॉम्बिनेशन है. एंड so the core thing is actually just going to just making a choice. I think fundamental is making a choice that from now on I'm going to stop any hostage situation in my life. नहीं तो we are held hostage by a whole lot of people subtly. Second ये रहता है we also hold other people hostage. तो हम भी करते रहते हैं अलग अलग तरह से, and you know side से करते हैं. So you have to stop both. And so I think अब मैं आपको थोड़ी सी बुक के बारे में बता देता हूँ. ये बुक है, ये वाली हाई कॉन्फ्लिक्ट बाय कॉन्फ्लिक्ट. एंड हमने इसको इस बुक में हमने क्या किया है कि कुछ अपनी कहानी डाली है, एंड पूरा वो फ्रेमवर्क बना रखा है. सो हाई कॉन्फ्लिक्ट बाय कॉन्फ्लिक्ट नाम क्यों रखा है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट वाज अ पैकेज बीइंग डिलीवर्ड, तो उसको दरवाजे से बाहर भगाने की जगह वेलकम नहीं है कि आजा. So high conflict is that I really welcome you. मेरी हालत खराब है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करते हैं, लेकिन still better to welcome rather than avoid कि भाई उसके अंदर का गिफ्ट कैसे जाने दो. And then engaging into a conflict, and when you engage into conflict with empathy, authenticity and respect, you will suddenly have a new level of awareness. Oh, I never knew my daughter was really concerned about this. मैं तो अपनी कहानी में ही थी. I didn't in my case I didn't realize that my wife was अंदर से उसको कौन सी चीज खा रही थी, because then once I understood what is eating her, तो मैंने उसको बहुत सारी चीजें सुलझा दी. Some things needed me to say something needed me to do something, वो सब मैंने कर दिया. So now those things are no more bothering her, and both of us are at a different level of awareness. So once you are at a different level of awareness, then you say bye to the conflict. कि आप जाओ अपने घर जाओ, और and it was glad meeting you. We were glad that you were sent here. So ये वाली book का basically in fact वो मैंने कहीं link अगर आप post कर सके तो कर देना. Yeah, I have shared it at the Facebook page as in the comment section. हाँ. So ये basically 1299 की book है, but अभी pre-order mode में चल रही है, अप्रैल में launch होगी. So anyone who pre-orders it will get it in 949 now. And इसके साथ साथ हमने एक पावर ऑफ इंटेंट जो अनिला बोल रही थी, तो पावर ऑफ इंटेंट का
एक पूरा पैक है 30 days का, मतलब it is like 28 videos with 12 hours recording. So power of intent का मतलब how do you align yourself to the universal force so that you magnetize your dreams faster. वो हो सकता है अपन कभी एक दिन और अलग सेशन करें अपने म्यूजिक वरांडा के लिए, बट उसकी पूरी रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो कम्स फ्री विद दिस बुक. सो वो अदरवाइज हम 990 में सेल करते हैं अलग से. सो दिस इज अबाउट द बुक. एंड अबाउट वर्कशॉप्स तो एकदम सिंपल है. माय व्हाट आई हैव लर्नड इज कि ये जो सारा सीखा है ना, चाहे पर्सनल लाइफ में चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, सब जगह एक ही चलता है. एंड so our workshops, I call them change leader workshops and change leader mentoring. So I would either mentor CEOs and CXOs. Basically leaders को भी यही सिखाना है on how do you handle your team better, how do you handle conflicts better, how do you bring collaboration in them and get the best out of them. So वो अलग अलग हमारी workshops के 3 pieces होते हैं. One is root, that you root deep in yourself, then you connect with others better is the second part. Third part is connect with your intention better and align with the universe. And fourth part is this conflict. How do you handle elephant in the room? तो यार आजकल सब ऑनलाइन करते हैं, पहले सब फिजिकली कर रहे थे. सो ये है बेसिक. और कुछ I would just like to share my example. जो आपकी वर्कशॉप शायद मैंने 8 या 10 साल पहले अटेंड की थी. Kamal had sent me to this workshop and that was the first workshop practically I had attended. और मुझे जब मैं वर्कशॉप करने जा रही थी मुझे लगा यार क्या है, like you know it's not going to help me and all. But it was a 3-day workshop and it changed my life. और उसके बाद मैंने बहुत सारी workshops की, आपने भी बहुत सारी suggest की थी, and it has actually taken my life to the next level. So I would actually suggest everyone to take these workshops very seriously. Whichever workshops, मतलब बहुत सारी आजकल workshops होती हैं. So I would actually want, mentors are so important, life coaches, they can actually, हम लोग tuition teachers लगा लेते हैं, सारे टीचर्स लगा लेते हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज है जिंदगी की, उसके लिए हमारे पास कोई भी, you know, we don't have a mentor, we don't have a coach. So I would give a lot of importance to coaches, mentors, and especially life coaches. So रोहन जी, हमारे और भी लोग हैं Zoom में, तो I would request यदि कोई questions हैं, you can remove the spotlight so that we can all see each other, and if they have some questions, और कुछ गाने भी हैं जो इस थीम पे ही हमने प्रिपेयर किए हैं वेरांडा वालों ने, so we would actually want them. Yeah, we can switch to gallery view. Yeah, yes, hello everyone. Yes, so any questions? किसी के कोई questions हैं? मनीषा, माश्वेता, रेनू, रूबी जी, मधु मुकेश जी, उत्तम जी, any questions, any personal situations that you need an answer? Anila, I would like to ask a question, please. Sure, go ahead. Yeah. A very good evening to all of you, and Mr. Rohan Singhal, warm welcome to you. Thank you. At the Music Veranda, and I have heard so much about you from Anila, and she talks highly of you, and it's my actually honor and good fortune to encounter you today. I just want to ask you one thing. You spoke about conflict, and people speak about the conflict, but people also speak how to handle the situation during a conflict. But during the conflict, one goes through that stress, that physical, mental, psychological stress. Nobody actually talks about that, and a large section of society, a large section of people, I would say that see, जोश की तो कमती नहीं है, पर उस स्ट्रेस को ही हैंडल नहीं कर पाते हैं, and we succumb to it and we give in. And then आप इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहेंगे, how to deal with the stress, वो जो journey है from conflict to the manifestation. See, no manifestation is that easy. I understand that it has to go through a process, but during that process, when your vibrations go down, what you are supposed to do practically? So इसके ना I think ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. और महाश्वेता के तो मैंने ना गाने सुने हैं जो, मतलब आपकी आवाज मैंने, हम कभी इस पे स्टेज पे सामने नहीं आए, बट आई हैव हर्ड यू सो मेनी टाइम्स.
So I'm glad to see you. And so इसमें ना यहाँ पे एक तो मुझे समझ में आया कि वो जो पीरियड है कॉन्फ्लिक्ट का, जब अपना एनर्जी बहुत डाउन है, उसको एक तो कैसे हैंडल करें ये वाला है, और दूसरा अपने आप को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें ताकि हम उस पीरियड को हैंडल कर पाए। तो ये दो पार्ट हैं, और इसको आप दूसरी तरह से सोचें कि अब जैसे चलो उस म्यूजिक की तरह से रहते हैं कि अपन अब एक स्टेज पे अब एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो एक तो एंजाइटी चल रही है, ठीक है, लेकिन आपने ये जो रियाज पहले जो अच्छा वाला किया, that will decide a lot how you handle the stage. You can't just wing a song to the stage ना, आप प्रैक्टिस करोगे, कोई भी गाना गाया है प्रैक्टिस करोगे और बाकी सारी चीजें करोगे, जितना गहरा रियाज है वो दिखेगा आपकी परफॉर्मेंस में। सेम वे कॉन्फ्लिक्ट पहली बार में अपने आप ठीक नहीं हो जाएगा। मतलब जैसे ये होता है ना कि हर चीज में मास्टरी में 2000 आई थिंक 10,000 स्टेप्स लगते हैं, 10,000 रेपिटेशन, चाहे वो म्यूजिक की मास्टरी है, चाहे क्रिकेट की मास्टरी है, चाहे कॉन्फ्लिक्ट की। और लेकिन ये भी है, अरे यार 10,000 स्टेप कौन लेगा, तो वो होता है ना कि 10,000 मतलब 100 किलोमीटर की जर्नी भी एक स्टेप से शुरू होती है। ऐसे म्यूजिक है, ऐसे ही क्रिकेट है, और ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट। सो वन डायलॉग एट अ टाइम से शुरू होती। सो आपको शुरू में छोटे छोटे गेम खेलने पड़ेंगे, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट पहले हैंडल करने होते हैं। सो सबसे पहले तो एक सिंपल चीज है कि जब भी अपन एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में आते हैं, सो हम सेंटर से अलग हो गए। तो अब क्या, सुर अगर इधर उधर हो गया तो ओम करके बीच में लाते हैं, या सुर बीच में लाते हैं ना, तो यहाँ पे भी हम डीप ब्रीदिंग से सेंटर में लाएं। सो वन इज वेन एवर यू आर अपसेट, जस्ट टेक एटलीस्ट 4-5 डीप ब्रीदिंग। उसके ना पैसे लगते, ना कोई आपको रोक सकता कि मैं तेरे से झगड़ा कर रहा हूँ, तू डीप ब्रीदिंग में लगी है। सो भाई कोई कितना रोक लेगा? यू कैन जस्ट से कि भाई होल्ड करो ना, मुझे 5 गहरी सांस लेने, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं थोड़ी तुमको कह रही हूँ तुम भी ले लो। सो यू जस्ट पॉज एंड राइट नाउ टेक 1 डीप ब्रेथ। और डीप ब्रेथ एकदम पेट से, वो जो ओम भी पेट से निकलता है ना रियाज में, वैसे ही पेट तक जाना चाहिए डीप ब्रेथ। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू टेक डीप ब्रेथ, नाउ ऑक्सीजन ज्यादा गई बॉडी में, ऑक्सीजन ज्यादा गई तो वो इस ब्रेन तक भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भेज देगी एमिगडाला की जगह, बिकॉज व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड द एमिगडाला हैज टेकन ओवर, एंड हमें फिर ये लगता है कि अब अपना फाइट और फ्लाइट ही ऑप्शन। बट थोड़ी डीप ब्रीदिंग के बाद ये नियोकॉर्टेक्स थोड़ा सा जग जाता है, एंड देन दिस नियोकॉर्टेक्स कैन फाइंड अ सोल्यूशन। सो पहला एक ये रास्ता है। दूसरा, मैंने बड़ा एक्सपेरिमेंट पता क्या किया है कि एक कोई बैंड लेने का, जैसे हैंड बैंड होता है ना कोई, हाँ हाँ ऐसा बैंड, या सो अब उस बैंड का पता क्या करना है, दैट यू रीप्रोग्राम योर सिस्टम, ऐसे खींच के नहीं करना, हाँ, बट यू रीप्रोग्राम योर सिस्टम सेइंग कि बिफोर आई गेट अपसेट, या तो मुझे गुस्सा आया किसी पे, या मैं मतलब चिकनिंग आउट फ्रॉम अ सिचुएशन, सो बिफोर आई गो आई मैड और आई सैड, जैसे ही वो लोकेशन सिचुएशन आएगी, आई विल रिमूव द बैंड एंड पुट इट ऑन द अदर हैंड, just that, remove it and put it on the other hand, and you know what it will do is, अब मैंने करा ये वाला एक्सपेरिमेंट, किसी को ना 30 एंगर इंसिडेंट्स पर मंथ की रेट थी, उसकी 5 पे आ गई एक पहले महीने में, बिकॉज none of us really want to explode and then create issues for a lot of people, because वो सारे बैक ट्रैक करने बड़ी मुश्किल हो जाती। सो वन इज शिफ्टिंग दिस हैंडबैंड, वन इज डीप ब्रेथ, और एक तीसरा हम जैक एंड फील्ड से सीख के आए थे, जैसे लैपटॉप में रीसेट होता है ना, कंट्रोल ऑल टास्क करके सारे डिलीट मार देते हैं, तो उसने बोला कि यहाँ पे जैसे, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस, कि ये जो हील ऑफ हैंड है, इधर अपने को 35 टाइम्स ऐसे टच करना है अपनी फिंगर से। ओके, सो डू इट राइट नाउ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20। ठीक है, सो मुझे इसका लॉजिक नहीं पता है, बट कहीं एक्यूपंक्चर से कहीं रिलेटेड है मेरे को लगता है। सो ये करने से यू नो इन अ वे इट जस्ट रीस्टार्ट्स योर सिस्टम, उस रीसेटिंग में अपना नियोकॉर्टेक्स भी चालू हो जाता है वापस, एंड वंस दैट इज डन, then again you will find a solution. And finally, what is very important is for us to realize that we are not a potted plant, we are all deep rooted tree of a forest, and we are supposed to
connect with all other trees, but हम सोच रहे हैं मैं तो अपने potted plant को ले जाऊंगा सारी दुनिया में. And when we feel disconnected and we feel disconnected from the whole force, then we get into the stress cycle. So very important is to reconnect. जैसे अभी आप सोचो, अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपका इंटरनेट काट दो, अभी कर लो आप कुछ भी ना, आपकी जूम कॉल कुछ नहीं चलेगा. So basically same way you have to restore your connection. So when you restore your connection, how do you restore your connection? One, by gratitude. So अपने को, so I can't just restore my connection. मैं उसी टाइम प्यास लगी कुआं खोद के पानी पीने थोड़ी जाऊंगा. So I have to restore my connection by having a better connection. So जैसे मेरा जब सब कुछ इंटरनेट पे डिपेंडेंट हो गया, तो I had to have two solid केबल सिस्टम इन माय होम व्हिच गिव्स मी टू बिग स्पीड्स, कि एक डाउन होगा तो दूसरा चलेगा, अपनी वेबिनार नहीं रुकेगी. सो सेम वे, हाउ डू यू कनेक्ट योरसेल्फ विद द यूनिवर्स इज वन, बाय बिलीविंग इन योरसेल्फ, बाय लिस्टिंग ऑल दैट व्हिच यू हैव डन वेल इन योर लाइफ, एंड उसको एक साइड में रखने का कि दीज आर माय सुपर पावर्स. वो एक अलग एक्सरसाइज है, बट लिस्टिंग ऑल दैट व्हिच यू हैव डन वेल, जितनी एज है उतने अकम्प्लिशमेंट लिखने का, एंड उसको एक साइड में हैंडी रखो. सेकंड इज बाय ग्रेटिट्यूड. एक तो मेंटल अंदर का ग्रेटिट्यूड और एक जेन्युइनली एक्नॉलेजिंग अदर पीपल. सो वहां से आपका रूट डीपर और कनेक्ट डीपर शुरू हो जाता है. सो यू नीड बोथ ऑफ दीज टू देन बेसिकली गेट, देन आपको कोई आराम से हिला नहीं पाए. तो आपका रियाज इतना अच्छा हो गया कि स्टेज पे थोड़ा बहुत माइक इधर उधर हुआ तो आप देखोगे कई बार यू वुड हैव सीन देयर आर सम न्यू सिंगर्स जिनकी ना हालत ऐसी कांप रहे होते हैं, बिकॉज दे हैव नॉट प्रैक्टिस. या तो उनको स्टेज की आदत नहीं है, या रियाज बराबर से नहीं है, या खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं. तो कई लोग बहुत, इनफैक्ट मेरी एक म्यूजिक टीचर थी जो स्टेज पे जाकर टेंशन में आ जाती थी, एंड शी वाज लाइक 18-20 साल की सीखी. So therefore I'm saying practice as well as deep rooting, both. रियाज भी चाहिए और एक भरोसा चाहिए कि हाँ ऊपर वाला अपने साथ है और अपनी आवाज निकलेगी. That I am just a channel. I am just channel of universal love, and I just come here to express myself and connect others to universal love. वो सोच के जब हम करेंगे तो स्ट्रेस का साइकिल साइड में होना शुरू हो जाएगा. एंड मे बी आपके सवाल का मैंने बहुत घुमा फिरा दिया, but hopefully it gave you some direction, and maybe if there is No, absolutely, yes. I have heard of the tapping of the collarbones, and ये भी है, ये सारा these all and the eyebrows. I have heard of this, but then this is something I remember karate chop mein, I guess that is why it is karate is a meditation. Yeah. So that is why I think in order to stay centered and not get perturbed by the enemy, that's why they use this part quite a bit in. ये है, और ये सारा टैपिंग वगैरह भी बहुत सॉलिड चलता है. But I have seen some videos and I have heard from Jack and Phil only that you can really shift. What I found is you can find ways. In fact, मेरे यहाँ quote लिखा है, if it matters to you, you will find a way. Wow. So if this stress matters to you, you will find a way. नहीं तो क्या है, हम sometime actually I found the stress actually helps you. उसकी वजह से ना जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी, छुट्टी मार ली स्ट्रेस के नाम पे. स्ट्रेस का एक पूरा साइकिल बना लिया, अब सारे लोग इससे दूर भागते हैं, तो अपनी दादागिरी है. So there are a lot of people who are king and queen makers by becoming stressful and attracting all the negative attention towards them. So and बोलते हैं कई बार हम लोग ना इससे निकलना ही नहीं चाहते, वो सारा इसके साथ जो किला है वो भी चला जाएगा. So therefore if you want to find a way, there are ways, there are books, podcasts, and उससे भी ज्यादा बेसिकली सबसे ज्यादा हालत खराब होती है एक्शन लेने में. वो सारा समझ लिया, सुन लिया, एक्शन लेने में जान निकल जाती. बट वहीं पे मेन फ्रीडम वहीं पे है कि व्हेन यू गेट इनटू द फियर, तभी वो गिफ्ट खुलेगा और उधर का गिफ्ट आएगा. इधर से बैठे बैठे आपकी नाइसिटी से को कुछ नहीं आने वाला. मैंने देख लिया वो 40 साल, दैट नाइसिटी got me a lot of friends, but I realized that by being authentic, the connection would be actually more deeper, which are now आज पिछले 5-10 साल में बहुत सारे connection deep हो गए. So और कोई सवाल पूछे? Thank you so much, and so we have you Shivani. mean to say that
that even if we do a small, I mean, effort during even a stressful time, रुकना नहीं है कहीं भी. एंड We should उसमें keep साथ में going. स्ट्रेस टाइम में चले ये बच्चे. स्ट्रेस टाइम में ना एक मेन चीज अपने आप को रिपीट करनी है, दैट आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड एंड आई एम ऑलवेज लव्ड एंड प्रोटेक्टेड. सो ये चीज रखनी है, एंड आई एम विलिंग टू कनेक्ट विद whatever is bugging me, bothering me, and I'm willing to discuss about it rather than running away from it. And उसके बाद देखो क्या होता है. Wow, wonderful, beautiful. So we have Shivani from Pune, and Aji's authenticity, you know, your session has done magic. So, because she said, Anila, can you ask a question on my behalf? I said, no, you should ask. She said, नहीं अभी मैं screen पे नहीं आना चाह रही. मैंने बोला, please be authentic, come on screen. And next moment I saw her on screen And she asking came. me the question. Over to you, Shivani. I'm so glad that you are here, and you're welcome. Whatever the question is, let's see. Thank you so much, sir. A very warm welcome to you. I'm Shivani from Pune and from Music Veranda. My question is, after the conflict, how to break that silence? I mean, both of us know what happened and where we fought to our near and dear ones. So how to break that silence? Like, जिससे भी हम झगड़ते हैं, हम दोनों को पता होता है कि we both are having this discomfort inside to talk and everything. But how to break that? Like, अभी कैसे शुरू करेंगे? We both know कि हाँ हो गया यार, अभी झगड़ा हो गया, हो गई गलती, now let's get back. So इसको कैसे रिजॉल्व करना? देखो, मैंने अब तक ये सीखा है कि पहले क्या होता था, साइलेंस में मतलब वो रुचि नाराज होके चली जाती थी, और मैं इसलिए साइलेंस रखता था कि कुछ और करके आग में घी नहीं डालना. एंड देन यू वंडर, एंड मुझे पता चला कि उसको वही चीज सबसे बुरी लगती थी कि तुम कुछ बोल ही नहीं रहे, तुम्हें कोई फीलिंग ही नहीं है. सो वो एक बहुत चक्कर रहता है कि, और सामने वाला सोचता है कि बोल के आग में घी डालने से अच्छा चुप रहे. सो व्हाट आई फाउंड इज रियली, एंड फिर मैंने रुचि को बोला कि तू उस टाइम कुछ सुनती भी नहीं है तो क्या करें. सो वन इज when you are not in a conflict zone, that time have a conversation कि जब भी अपना conflict होता है उसके बाद silence होता है, उसको break कैसे करें. So talk to the other person and come with a strategy. So Yeah, what do they expect है ना, कि मतलब नहीं क्या करना चाहिए, what do they expect, नहीं, we don't have to meet people's expectation. अपने को ही करना है कि conflict के बाद जो silence आता है उसमें मुझे मजा नहीं आता, तुमको आता है, बोले नहीं मुझे भी मजा नहीं आता, तो इसको कैसे ब्रेक करें, कोई कोड लगाएं. तो जैसे मैंने रुचि को बोला यार कि जब तू ये नाराज होती है तो बिल्कुल सुनती नहीं है, एंड समटाइम्स शी सेज दैट राइट नाउ आई डोंट वांट टू टॉक टू यू बिकॉज आई मे एंड अप सेइंग समथिंग व्हिच आई कांट विथड्रॉ बिकॉज आई एम सो अपसेट. एंड मुझे लगता था कि ये, तो शी सेड आई गो इनटू साइलेंस बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज नाउ आई एम प्रोसेसिंग एंड मेरे बहुत उबाल चल रहा है. सो मैंने कहा तो यही कह दे पहले कि भाई राइट नाउ अगले 15-20 मिनट में हम नहीं बात करने वाले बिकॉज आई एम प्रोसेसिंग समथिंग. एंड सेकेंड फिर मैंने कहा कि, एंड देन आई यूज्ड टू आस्क, अच्छा तेरे मन में क्या चल, देन यू से तुम अपनी किताब ले आए, फीलिंग गुड मेरे पे मत लगाओ. सो देन आई वुड से भाई तुम, इफ आई वांट टू सॉल्व समथिंग एंड यू डोंट हेल्प, देन हाउ वुड इट वर्क, बिकॉज तुमको भी तो सॉल्व करना है ना वो, बट मे बी यू वांट इट सॉल्व्ड इन योर वे, हाउ डू आई रीच आउट टू यू. तो शी सेड, देन शी केम अप विद कि तुम मुझे व्हाट्सएप भेज दो भाई, इफ वी आर नॉट टॉकिंग तुम व्हाट्सएप भेज दो या एक मेल भेज दो. तो मैंने कहा ये भी सही है. तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि हमारा बड़ा सा भड़ाका होने से पहले आई देन रियलाइज कि अच्छा यार ऐसा हो रहा था, मुझे ये बुरा लगा, उसको ये लगा, एंड फाइनली दिस इज व्हाट आई फेल्ट दैट आई टुक हर फॉर ग्रांटेड. एंड आई जस्ट in the car itself when I was going to my office, I just wrote कि I think I did this and I didn't like this, but this was what probably would have bugged you a lot and this is what I'm going to change. तो मैंने ऐसा लिख दिया और वहीं की वहीं वो elephant resolve हो गया. So again I can't give you a formula, but you have to keep the probe. Yeah, but talking helps, I guess. And talking and increasing bonding. भाई कि जब झगड़ा हो रहा है तो बिल्कुल किसी को बात करने नहीं करो, उसी टाइम यू हैव टू लीन इन. अच्छा सर यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन आया कि ठीक है, वी हैव टू लीन इन एट द सेम टाइम. हम सपोज अब मुझे पता भी है कि क्या करना है, बट वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि यू लिसन टू मी, व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट, वो भी तो बताना है. यही तो व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट पे नहीं जाना ना,
See, आप तो right mode में घुस गए. Okay. See, ठीक है. so you have to come to a common point is that we are together. We want to build a relationship where both of us love each other's company and grow each other. So you have to come to some common points कि अपना common क्या है. भाई झगड़े अलग अलग हैं, मेरी आदत है तुम्हें पसंद नहीं, तुम्हारी मुझे पसंद नहीं, वो सब ठीक है. But what are the common things that we want each other to respect each other, value each other, love each other. तो common point निकालो and having a conversation. And again मैं बता रहा हूँ कि अभी जब लॉकडाउन आया तो इट वाज अ टेस्ट कि आपने अपना फाइनेंस कैसे मैनेज किया है. उसी टाइम आप बैठ के थोड़ी सारी अर्निंग करोगे. आपने पहले कुछ SIP लगाए, इन्वेस्टमेंट लगाए, वो आएंगे ना आप काम. तो ऐसे रिश्ते में भी यही है कि जब रिश्ते के भड़ाके होते हैं उसके पहले आपने कितना इन्वेस्ट किया रिश्ते. तैयारी की उसकी. हाँ नहीं तो इन्वेस्टमेंट इज 1 SIP एट अ टाइम. चाहे 1000 रुपीज अ मंथ. सिमिलरली 1 डायलॉग एट अ टाइम. लेकिन आपने क्या यहाँ पे छोड़ नहीं बोलते, उसको बुरा लग जाएगा. वो एक नेगेटिव एलिफेंट बैठ गया, फिर उसके ऊपर दूसरा आ गया, फिर वो एलिफेंट खा के बड़ा हो गया. अब वो वाले एलिफेंट को आप भगा नहीं सकते, और उसको काटने की कोशिश करेंगे तो महिषासुर जैसा मल्टीप्लाई होगा. सो यू कांट यूज वायलेंस ऑन द एलिफेंट. सो यू ओनली कैन डिफ्यूज इट बाय पुटिंग अ टॉर्च लाइट ऑन इट. एंड बोथ ऑफ यू हैव टू पुट अ टॉर्च लाइट ऑफ अवेयरनेस की. और ये बहुत बार मतलब अभी भी हमारे कोई कॉन्वर्सेशन में कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी भी आ जाता है, लेकिन अब मैं ना उससे डरता नहीं. इनका आएगा और हाथों हाथ हैंडल करेंगे, छोड़ेंगे नहीं. सो होपफुली you got your answer. But ये शुरुआत है. You remember that this talk is just a beginning of a magical journey. If you wished, आप बुक लो ना लो सब ठीक है, but you're choosing to be authentic in your life, that itself would be a great contribution to everyone around you. Because मुझे किसी ने बोला था, जैसे ही you give permission to yourself to be fearless, आपके आसपास भी people will start becoming fearless. Yes. And that's how it works. I have experienced it. Thank you so much, sir, for answering. Welcome, Shivani, and welcome for. I think you already made a beginning to come on the screen. If that, because I know जब मेरी जो जान निकलती थी ना सामने, I failed every group discussion when I was in college because I was very scared of speaking, and I always thought कि मैं तो कुछ बेवकूफ बन जाऊंगा. If I speak anything, everyone will laugh at me. And but there again, I was more worried about myself. While इतना बुरा हाल नहीं था अंदर. Okay. So that's Rohan Singhal, life coach, leadership mentor, and I am IIT alumni. Just worked with very big corporates, Jack Canfield, workshops जिन्होंने attend की हैं, and he has been, globally, he is a very, very successful corporate trainer, and we are very, very happy and privileged that today he is at Music Veranda. So thank you. We can have some more questions. Yeah. Just a moment, हाँ शिवानी बोलो. रोहन सर को तो थैंक यू बोल ही रही हूँ मैं, और आपको भी a big thank you for having all of us on this show, for creating this show. Actually, a big thank you to you also. ये एक ड्रीम था जो मैनिफेस्ट हुआ है. आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई डोंट नो, आई वांटेड रोहन. सर आई हैड बीन टेलिंग हिम फॉर लास्ट 1 year, सर वरांडा में आइए, और आज आए हैं वरांडा में. So can we have some songs? Ruby ji and Manisha, will you like to sing? And Bhashweta has also prepared something, so I like, and Rohan sir, of course, you. So we'll start with Ruby ji and then Rohan and then Manisha, Bhashweta, whoever. Yeah. Over to you, Ruby. मैं मन्ना डे जी का गाना गा रही हूँ, सूर्य ना सजे. आप तो दूसरा गा रहे थे अभी. नहीं, यही वाला मेरा है. यही वाला ऑथेंटिक. अच्छा, आप वो गा रहे थे ना, आंधी का गा रहे थे ना. वैसे तेरे बिना जिंदगी आपने आंधी का बोला था ना गाने का. हाँ बोला था आपने. हाँ तेरे बिना, तो मुझे लगा ये वाला होगा. ठीक है, सुनिए थोड़ा. हाँ ठीक है, आपकी जो इच्छा है. ओके, ओवर टू यू. सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सुना, सुर के बिना
जीवन सुना सुर ना सजे, क्या गाऊं मैं दोनों जहां, मुझसे रूठे तेरे बिना, ये गीत भी झूठे तेरे बिना, ये गीत भी झूठे सुर ना सजे, क्या गाऊं मैं सुर के बिना, जीवन सुना सुर ना सजे। संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिम झिम रस बरसाए, संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिम झिम रस बरसाए, स्वर की साधना, स्वर की साधना परमेश्वर की, सुर ना सजे, क्या गाऊं मैं सुर के बिना, जीवन सुना सुर के बिना, जीवन सुना सुर ना सजे, क्या गाऊं मैं सुर ना सजे। थैंक यू। Wow, very nice. And I think music also helps in resolving conflicts. So, do you think so, Rohan? So see, मुझे एक तो समझ में आता है कि म्यूजिक से वैसे ही बहुत फर्क पड़ता है. It actually brings music also brings that spark kind of an environment, and it calms down amygdala. वो तो फर्क पड़ता ही है. और दूसरा ये कि म्यूजिक का मैं भूल गया बताना कि भाई हम सब म्यूजिक वाले हैं जहाँ पे, तो अगर ये सोचो एक डुएट गा रहे, तो अभी उसमें ना एक फीमेल वॉइस का वॉल्यूम खूब सारा बढ़ा दिया, मेल वाला दबा लिया, तो सॉन्ग तो मुश्किल हो गया. एक तबला तेज बज रहा है और गिटार कम बज रहा है तो भी मुश्किल हो गया. सो ऑल ऑफ देम हैव टू बी देयर ऑथेंटिक सेल्फ, तभी सब कुछ ठीक से आता है. सो इन दैट सेंस म्यूजिक इज वेरी रिलेटेड. Yes, great example. Thank you so much. And can I request Manisha? यस, थैंक यू अनिला जी. बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये शो क्यूरेट किया. बहुत. और वेलकम रोहन सर. बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिल रही है. मतलब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स लाइफ में रहते हैं, लेकिन उनको हैंडल कैसे करना है मैं सीख रही हूँ. सो थैंक यू सो मच. I would just like to introduce Manisha. She's a wellness coach and she logs in from Germany every evening to Music Veranda. So thank you, Manisha. Sorry I interrupted you, but I think it was important. Yeah, thank you अनिला जी. ये सॉन्ग भी जो मैं गा रही हूँ, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, तो ये थोड़ा तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं. तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं. जी में आता है तेरे दामन में सर छुपा के हम, रोते रहे, रोते रहे,
शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। थैंक यू सर। मुझे एक क्वेश्चन you. भी पूछना था आपसे। कैन आई आस्क राइट नाउ? इज इट ओके अनिला जी? Do we have time? I don't know. Let me check it with you. या प्लीज। I'm okay. आप पूछो। मुझे लग रहा था मनीषा कुछ पूछने वाली थी, वो बोलिए। सर मुझे एक्चुअली क्वेश्चन इज कि इफ यू आर द लीडर ऑफ अ टीम and there is one person who is almost equally qualified and better at the same skills, then this person is not going to like you to be the leading member, to be as a leading member. So in such case lot of conflicts happen. So इस केस में how to handle that thought process and how can we tackle these people? सी ये वाला बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और ये बेसिकली ये आता ही बहुत बार ऐसा आता है कि पियर्स, एक्चुअली इसमें कई बार क्या होता है ना, वो पियर थे दो और उसमें एक जने को प्रमोट कर दिया गया। हाँ। दोनों में से दोनों को तो कर नहीं सकते, एक को प्रमोट कर दिया। अब ये इसको रिपोर्ट, हाँ, तो अब ये है कि अब इस वाले को पूरी जेलसी आ रही है कि ये मेरी जगह चली गई एक्सेट्रा। सो वन इज जस्ट बीइंग ऑथेंटिक विद दैट पर्सन, कि हो सकता है तेरे को वहां भेज देते, बट समहाउ द कंपनी चोज मी फॉर सम रीजन। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आई एम हियर टू हेल्प यू बी अ विनर। So actually having a conversation and genuinely then understanding that person, वहां पे भी empathy चाहिए कि ये जो person है इसका goal concern fear क्या है। एक fear ये है कि मेरा रोल चला गया, and but basically goal ये है कि that he or she wants to be a thorough professional who's actually valued as a good leader, and so basically, और ये थोड़ी कि this is the only department, यहीं पे कुछ हो सकता है, बहुत सारे और जगह होते हैं कंपनीज में। एंड इनफैक्ट मैंने देखा है कि इफ so the whole idea is understanding the person better and in every place give that person a chance. उसको ही पहले बोलो कि भाई तुम सबसे ज्यादा सीनियर हो, तुम पहले बताओ। Okay. So give that person a chance. So that means you have to be secure in your position. That and you can share it कि भाई हम दोनों की बड़ी ये similar capability है. For some reason both of us would have wanted to be in this role. For different reason company took me and I am happy about it. But that doesn't take away her ability. And मैंने decide नहीं करा मुझे वहां भेजने का और इसको यहाँ रखने का. But what I am going to do is make the best out of her ability. Whatever her level is different. And जब हम ये किसी project पे काम करें तो we are a team. So कई बार you basically forward her and that, but you do it in a genuine way because ये vibration में पता चल जाएगा। अगर आपका कोई hidden agenda है, then she or he will pick those vibrations. So genuinely have a vibration that I want her or him to progress in life. उसकी जिंदगी में वो आगे बढ़े। So वो intent से जब आप उससे deal करोगे rather than being a competitor. Because अभी कई बार ये होता है कि the moment you were promoted ये लगेगा आप इसको कैसे handle करेंगे। So and you just share authentically with that कि मेरे को तो ये tension हो गया कि while I was happy with the promotion, my biggest tension was that how will I handle you and how will it work out between us. हमारी इतनी अच्छी friendship थी, अब ये कहीं और चली गई. So I want to sort it out, and which doesn't mean कि मेरी जगह तुम आ जाओ, वो नहीं करना मुझे. But we can, with this given new structure, we can still do something. Again जो पिछले क्वेश्चन में था कि talking to that person and finding कि इसमें वो मजा नहीं आ रहा. Are you enjoying the equation और जो हमारी chemistry खराब हो गई? So can we restore it? Can we restore the high quality connection in the new situation? Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah. So I hope Manisha has got the answer. Yeah. She's smiling, Yeah. she's feeling कि अरे जादू की छड़ी मिल गई. बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं अनिला जी, मतलब हम लोग वो शायद कहीं मतलब अंदर समझ में आते हैं लेकिन सिचुएशन में समझ में नहीं आते. जैसे सर बता रहे हैं ना, अभी मुझे वो क्लियर हो रहा है कि हाँ यस ये आई कैन डू दिस. मींस थैंक यू सर. One thing that I practiced and it worked was
going for dates, going with Nishtha for date and going with whoever. जिसके साथ भी problem, मतलब problem है नहीं है, just go and have for coffee dates, for dinner dates, and just talk. So that is something which actually helps. Am I right in that? Yeah, उससे बहुत चीजें resolve हो जाती हैं, समझ में आते हैं कि क्या सोच रहा है. So a song from Rohan, क्योंकि म्यूजिक वेरांडा में है ये तो यहाँ पे इतना जिसको बोलते हैं ना, मेरा एक छोटा सा म्यूजिक ग्रुप है, एंड सो बेसिकली इधर तो ओरिजिनल स्केल पे गाने वाली लेडीज हैं. औकात चाहिए ओरिजिनल स्केल पे गाने के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अदरवाइज व्हेन यू हैव टू सिंग, सो वो पिच का काफी चक्कर हो जाता है. और दूसरा क्या है, आई बीन सो यूज्ड टू अ क्रच ऑफ, पीछे हारमोनियम या कोई कॉर्ड चल रहा हो तो मैं अपनी तरफ से ट्राई कर देता हूँ बिना उसके. एंड सो ये मेरा बड़ा फेवरेट गाना है. और इसमें मैंने सेकंड अंतरा है जो वो फिल्म में नहीं आया है, बट मैंने कभी यहाँ शेयर किया था. ठीक है. सो मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई. प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर. मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह. मैं दुश्मन तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई. ये दूसरा अंतरा है ना, ये मैंने कहीं शैलेंद्र के उससे सुना था, मैंने ग्रुप में शेयर भी करा था. मैं ट्राई करता हूँ. क्या हुआ उठ के महफिल से जाने लगी, होके मगरूर आंखें चुराने लगी. तेरे दिल से जरा दिल लगी मैं करूं, थोड़ी सी अपनी तारीफ भी मैं करूं. तू दिलबर तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा तूने मुझको तुझको दिलबरी आ गई. मैं शायर तो नहीं. थैंक यू. क्या बात, बहुत यस, क्या बात, बहुत सुंदर, मजा आ गया. थैंक यू सो मच एंड यू सैंग्स रियली वेल, और बहुत मजा आया ये सुन के. एंड सो दैट ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ दिस, बट बिफोर दैट आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर Mahashweta and to sing a song for us. And thank you so much, Rohan sir. Thank you so much for being part of the Veranda, taking out time for Veranda. I know you have been keeping extremely busy and preoccupied, but I'm sure you will get a lot of unconditional love from Veranda, because they had all been waiting for you for a long time. So on behalf of everyone, thank you. हाँ, एक चीज मैं जल्दी जरूर कहना चाहूंगा कि the freedom you will experience when you handle all these conflicts. तो हालत खराब होती है शुरू में, बट उसकी उस तरफ जो है वो बहुत मजेदार है. मतलब एक्चुअली दैट जो मैं शुरू में बोला था कि आई नेवर न्यू ये अनकंडीशनल लव कुछ होता है. So now I can actually say this on stage in front of my wife and anyone else that I have experienced unconditional love, someone having your back unconditionally. And अभी जो जितने हम गाने गाते हैं ना प्यार वाले, मैंने सारे रटे हुए हैं, बट एक्चुअली अब वो सब गानों में ना मीनिंग नजर आने लग गया कि हाँ यार ये तो सही लिखा था बराबर से, अपनी जिंदगी में तो बराबर वैसा का वैसा है. So that whole love is all available to us, but we have been avoiding it by avoiding conflict and authenticity. And each one of us has many relevant people in our life who are just waiting, but they are waiting
and they are pretending whatever they are till we show up our authenticity, and the freedom behind is amazing. मतलब अब मुझे लगता है चलो आज भी कोई उठा लेगा ना संसार से तो अपने को कोई अफसोस नहीं रहेगा कि पीछे कुछ छूट गया, किसी को कुछ कहा नहीं, सब जगह कह कह के खत्म कर रखा है. So everything is clean that way. चलिए. Thank you. So is that your message on this eve of Happiness Day? So main message to happiness is that that you know wanting everything अपने आप सब ठीक हो जाए, जादू से ठीक हो जाए, सबको अक्कल आ जाए, सब कोई मेरे को समझ ले, वो कभी नहीं होता. So what is needed is one dialogue at a time, one sharing at a time, one listening at a time, and all of us can restore the happiness with which we were born. जो अपनी शाइन थी ना पैदा होने में जो थी, वो अपने को रिस्टोर करनी है, क्योंकि हमने बांट दी इधर उधर, यहाँ कुछ बोला नहीं, ले तू ले जा, ये वाली ऑथेंटिसिटी तू ले जा, सबको बांट दी, वो सारी वापस ले लो. एंड वो जो होता है ना कि प्यार का प्याला वो छलका रखा है, वो सीधा कर लिया, वो उसमें भर जाएगा, फिर वो औरों पे जाएगा. What I've understood is only when you love yourself, then ये overflow होके बाकी जगह जाता है. And do not expect others to love you. वो बड़ा important है, और फिर वो भर भर के आएगा कि आपसे रोका नहीं जाए. Thank you so much. And so, Shweta, take this magic ahead by your beautiful singing. Over to you. So thank you, everyone. Thank you, Facebook viewers, for being part of this evening. And I hope this session has helped many of us. And that is the intent, and that is the agenda, and that is the mission of Music Veranda. कि ये जो प्यार की और जो ऑथेंटिसिटी की लाइट है वो ज्यादा लोगों तक स्प्रेड. थैंक यू. Over to you, Shweta. Rohan sir, your journey is so inspiring. I mean, it actually tells us कि कहीं पे रुकना नहीं है. So I would like to dedicate this song for you. सूरज दिख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है, जब कोई ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना. ओ शाम सुहानी बन जाती है दिन इंतजार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही. Thank you once again. Thank you. Shweta, on my behalf, can you sing that जो mentors पे हम लोग गाते हैं? Which one? Sufi wala, or Sufi song. Yeah, sure. Oh, you're such a great mentor. Yeah, it's in Rag Des, and it has been composed by Hazrat Amir Khusro for his mentor, Hazrat Nizamuddin Aulia. So it goes like this. It's in Rag Des. मैं थोड़ा सा उसका गाती हूँ. एरी सखीरी मोरे ख्वाजा घर आए, एरी सखीरी मोरी ख्वाजा घर आए, भाग लगे इस आंगन को, भाग लगे इस आंगन को, बल बल जाऊं अपने ख्वाजा को, बल बल जाऊं अपने ख्वाजा को, चरण लगाया निर्धन को,
चरण लगाया निर्धन को एरी सखीरी मोरे ख्वाजा घर आए। मैं तो कब से द्वार पे ठाड़ी, मैं तो कब से द्वार पे ठाड़ी, काजल बिंदिया कंगना बारी, काजल बिंदिया कंगना बारी, अपनी ख्वाजा की देख सूरतिया, अपने ख्वाजा की देख सूरतिया, हार गई मैं तो तन मन से तेरी सखीरी मोरे ख्वाजा घर आए। Thank you.